Now, what is exactly the importance of good etiquettes? What can knowledge of etiquette do for me? Ask yourself this question. It will foster meaningful relations. If you are soft spoken, everybody would like to talk to you. If you offer a helping hand, then certainly they will look forward to your help. So you make others comfortable and create a relaxed atmosphere wherever, whenever we go. It is not about being perfect or being prim and proper, but it simply helps us to know how to behave and conduct ourselves when we are in a public forum, in different environments. It is not only with the community, with the staff, with the management, with the family, but wherever you are, even to the unknown person. Say, for example, if you are seeing a person fainting in a travel and immediately you rush to offer the water, what will be given to the passengers to understand? Oh, he is a helping hand. वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मैंने कई अभी माइम्स देखे हैं, मीम्स देखे हैं, इंस्टाग्राम पे भी देखे हैं, सीपीआर देते हुए. A gas cylinder delivery boy comes and he falls down with the heart attack. The landlady, what she did, अंदर से पानी लेके आई and then हाथ को ऐसे रख के हार्ट के ऊपर सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिएशन. दिस इज हेल्पिंग है. क्या वो गैस वाला जाके 10 जगह नहीं बोलेगा कि मेरे को मैडम ने बचा लिया आज, मेरी जिंदगी उन्हीं की वजह से. He will never forget you. Now, it by knowing how to read social cues and communication effectively, we put together we put others at ease. We foster meaningful relations and create a comfortable atmosphere, relaxed atmosphere wherever we go. Now, the principles of etiquette, I told you there are three. First is respect. Whether he is younger to you, child, elderly person, or your own age, your colleague, management, community members, सब्जी वाला, अगर आप उससे आप करके बात करेंगे, and whenever he serves you or fulfills your need, what you say? Thank you भैया. ऑटो वाले को भी जब मैं बोलता हूँ तो वो पलट के भी देखते हैं मेरी तरफ, फिर वो बताता है थैंक यू सर, थैंक यू सर. किस चीज का थैंक यू? राइड के लिए तो पैसे दिए थे. थैंक यू इस चीज का कि यू लेफ्ट मी एट माई डेस्टिनेशन सेफ, वन पीस. Similarly, demeaning others for their ideas. This is no respect. So we have to be open minded. When to laugh, when not to laugh. When to smile, when not to smile. When not to react. Respond तो आपने कभी भी किसी कंडीशन में करना ही नहीं है. The only thing what you can do is respond, और क्या respond करते हैं number one, and then don't react. Facial features भी अगर आप करेंगे, so then, for example, if you are on time always in your school, you will be appreciated by your principal and your colleagues also. अरे वो बड़ा punctual है भाई, he is very punctual, she is very punctual, always reaches school in time, always reaches meetings in time. If you dress appropriately, you will be appreciated. And giving full attention to the other people.
जब आप कोई बोल रहा हो तो बीच में ना बोले, एंड देन गिव देम रेस्पेक्ट. Oh, that is great idea. Oh, that is great suggestion. Say on and so forth. Now, second is consideration. A person who respects herself is not boastful or pushy, but is secure in a way that inspires confidence in others. दूसरे बंदे को आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस होता है. When you respect them, so they create confidence upon you. No, she is a reliable person. I can share my problem with her. I can share my condition with her, my restrictions with her, anything. So, but having consideration is about having empathy towards other person. Empathy means you put yourself in other shoes, which means how you will feel if you were put in the same condition. That is empathy. And the key to consideration is thoughtful behavior. कभी कोई आदमी स्लिप कर जाता है, और जनरल पब्लिक में एक ऑब्जर्वेशन मैंने देखी है, पीपल स्टार्ट लाफिंग. सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग, नॉट एट ऑल. Being thoughtful means thinking about what you can do for those who can be benefited with them, who can be affected with them, how your action will affect them. This is consideration. So it bestows a token of appreciation, again, the same way as respect. And the third thing is honesty. Honesty is both about telling the truth and avoiding lies, acting sincerely with integrity. If you have done something wrong, accept it. To a person, accept it. And that will be the honesty. That is the best part of honesty. But we should add that we like benevolent rather than brutal honesty. And it's the basic of tact. Without causing embarrassment or pain to someone else, you empathize with them. Honesty is also being authentic and genuine with others. You have to be authentic, you have to be genuine. Authentic and genuine means both. Now, altogether, putting all these principles, we come to the conclusion that you will be a soul of graciousness and have excellent relationships as a result. These three principles will see you through thick and thin. जब भी आपका डिफिकल्ट टाइम आएगा, ये तीन प्रिंसिपल्स देख के दूसरे लोग आपको हेल्प करेंगे, 100% करेंगे. Even when you are interacting with difficult people, even the relationship with them also will improve. You will improve that relation with them also. Now, general professional etiquettes, attire. मैंने बताया आपको अभी कि what you like to wear out on the weekends to a club is not okay to wear when teaching. क्लासरूम में वो नहीं पहन सकते. इसी तरह से आप पार्क में घूमने जा रहे हैं तो टाई लगा के अगर जाएंगे तो people will look at you as a joker. But they frequently embarrass for all 20 plus and early 30s. Attire, वो जीन्स के घुटने फटे हुए हैं, टी शर्ट यहां तक आ रही है. What is that? That type of attire you cannot use. Second is punctuality. मैंने अभी बताया, the administration know ahead in time when you announce to him before the meeting starts, sir, midway or 10 minutes before, I would like to leave the meeting because my mother is sick, or I have to catch the train. After that, another train will be 2 hours late.
after 2 hours. He will understand because जो आपने etiquettes देखे हैं, they will be there. Always they will be there. So they will be understanding. Next is effectiveness. Now, obsessively when you use work time, मैंने टाइम मैनेजमेंट पे भी एक बनाया हुआ है, सॉफ्ट स्किल्स पे है भी होगा, 25 26 2 दिन, टाइम मैनेजमेंट में भी अगस्त में करेंगे. क्यों? ये टाइम इफेक्टिवली यूज करने के लिए क्या होना चाहिए? जनरली द थिंग इज कि जो टीचर्स हैं जिसमें कि 90% या उससे ज्यादा लेडीज हैं, जब वो घर पहुंचती हैं दे आर टोटली एग्जॉस्टेड. और एग्जॉस्टेड फिजिकली नहीं, फिजिकली जितनी ताकत एक लेडी में होती है उतनी एक आदमी में नहीं होती है. A male member of the family cannot work from 5 a.m. in the morning till 10 p.m. in the night. टाइम मैनेजमेंट में भी है, करेंगे उसको भी. So during work hours, it is not appropriate to use your WhatsApp account or even your mobile. कभी नहीं. इफेक्टिवनेस तो उसी से आएगी when you use the allocated time for the purpose for which it has been allocated. Homework correction, 1 hour. Tomorrow I have got third period free, seventh period free. थर्ड पीरियड सेवंथ पीरियड किस टाइम पे होता है? होमवर्क करेक्शन सेवंथ ए, सेवंथ पीरियड होमवर्क करेक्शन फोर्थ सी. लिख दिया आपने. मिसलेनियस एक टाइम मैनेजमेंट में हम रखते हैं 1 hour. कहीं ज्यादा चाहिए होता है तो वो मिसलेनियस का कम हो जाएगा, कहीं बच जाता है टाइम तो वो मिसलेनियस में ऐड हो जाता है. सो दैट व्हेन यू गो होम यू आर रिलैक्स्ड, मेंटली यू आर रिलैक्स्ड, बी स्ट्रेस्ड कि आज मेरे पास ज्यादा स्ट्रेस नहीं है. आई डोंट हैव टू वर्क हार्ड बैक एट होम. करना तो पड़ता है बट यू विल नॉट बी स्ट्रेस्ड. मैनेजमेंट बिहेवियर इन मीटिंग. Now, it is important to or engage in respectful behavior. मैंने अभी बताया था आपको, जनरल स्टाफ मीटिंग हो, स्मॉल टीम मीटिंग हो, सब्जेक्ट मीटिंग हो, डिपार्टमेंटल मीटिंग हो, whenever you, wherever you are, please stop checking your cell phone. Hey, then and now, then and now, then and now. अगर आपको पहले जाना है तो अपने प्रिंसिपल को बोल दीजिए या जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा है उसको बोल दीजिए. एंड इफ यू थिंक सो देयर इज एन इमरजेंसी, यू जस्ट स्टेप आउट ऑफ द रूम डिस्क्रीटली एंड वेट फॉर अ ब्रेक. लॉन्गर ट्रेनिंग सेशंस में जनरली ऐसा होता है. एक तो मैं बात बोलूं आपको कि आप लोगों में से जितने लोग कम्युनिटी में हैं, you can join 1 or 2 groups, that is more than sufficient. You need not request to join all the groups. क्योंकि जब कम्युनिटी में मैं कोई भी वेबिनार के लिए पोस्ट करूंगा तो वो जितने भी मेंबर्स कम्युनिटी के हैं एट प्रेजेंट देयर आर 1500, मोर देन 1500, दे ऑल विल गेट नोटिफाइड. कुछ तो ऐसे भी हैं इसी मीटिंग में जो पहले मेरे पास कभी किसी मीटिंग में नहीं आए, बट दे आर इन द कम्युनिटी सेटिंग. दूसरी बात, when you are communicating with me on the WhatsApp, try to finish this communication before you leave. मैंने देखा है when is the meeting sir, और उसके बाद WhatsApp छोड़ दिया. अब हम देख रहे हैं हमने मीटिंग बता भी दी कब है, बट 1 घंटे 2 घंटे बाद आज का, मैं आपको बताऊं ना, आज का जो नोटिफिकेशन आज की मीटिंग में मैंने किया था जानबूझ के 5:45, अभी भी उसमें हमारे पास 3 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी देखा ही नहीं है. वो कभी ग्रुप की मीटिंग को देखते ही नहीं है. पर्सनल मीटिंग को देख लेंगे, पर्सनल चैट को देख लेंगे. अरे ग्रुप मीटिंग देखने में कितना टाइम लगता है. अगर आप नहीं देखेंगे तो वो अनाउंसमेंट धीरे धीरे नीचे होती चली जाएगी. You will never be able to see that. So be aware for the next notification of
soft skills on 25th and 26th. Next, this is what communication. ये तो हमने communication देखी WhatsApp की या मीटिंग में. Now what about communication via mail? WhatsApp में भी होती है grammatical mistake, but blatant spelling mistakes, grammar mistakes, comprehension. एक बार पढ़िए जो आप किसी बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू एक्सेप्ट फ्रॉम अ टीचर? We do realize that some mistakes are our slip, but they should not be. और सबसे बड़ी बात ये है कि वर्ड में अगर आपको नहीं पता चलता है तो वर्ड में उस वर्ड को करिए टाइप और राइट क्लिक कर दीजिए. वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. यू विल गेट द राइट स्पेलिंग. प्रूफ रीड कीजिए, खुद करिए. मेल मैसेजेस भी, ईमेल मैसेजेस भी, व्हाट्सएप मैसेजेस भी, थ्रू आउट एक बार लिख दीजिए, पोस्ट कर दीजिए, पढ़िए उसको. एंड इफ यू सी दैट देयर इज मिस्टेक, तो व्हाट्सएप की बात बता रहा हूं मैं, मेल में तो वो रेड लाइन आ जाती है राउंड वर्ड के नीचे, आप उसको राइट क्लिक करिए, यू विल गेट द थिंग. सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये ईमेल कम्युनिकेशन मैंने बता दिया. अब डिस्क्रिशन. डिस्क्रिशन है use description when we talk about, when you talk about, me talk about, or anybody talks about. 50%. Anybody talks about one, about the other. Don't talk about one person in front of other person. अरे वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, ये तो लेडीज में होता है. दिस इज कॉल्ड गॉसिप, because this will create a wrong image for you. Don't fall into this trap. कम से कम स्कूल के अंदर नहीं. कम्युनिकेशन मैंने 4 C's ऑफ 21st सेंचुरी अभी कुछ दिन पहले ही किया था. किसके साथ कैसे करना है, हर जगह डिस्क्रिशन. एनीथिंग कॉन्फिडेंशियल अबाउट द स्कूल, you should not talk to anybody, not even your family members, because it is very easy to gossip. Avoid cliques. The school where the staff is primarily female, जो कि आजकल एक ट्रेंड है. There are a number of staff cliques. Rise above this behavior. Cliques means what? एक दूसरे की बुराई करना बच्चों के सामने, मैनेजमेंट के सामने, दूसरे कुलीग के सामने, फैमिली मेंबर्स के सामने. किसी पेरेंट टीचर्स मीटिंग में अगर एक किसी पेरेंट ने बोल दिया, अरे वो आरती मैडम तो बड़ी रूड है, आपने उसको सपोर्ट कर दिया, हाँ सर वो उसका नेचर है. अगर आपने हाँ सर कह दिया तो यही स्टेटमेंट आपके नाम से आगे जाएगा. कभी मत करिए ये. डोंट रिएक्ट, डोंट रेस्पॉन्ड, stay quiet without any expression on your face. Next is language. Appropriate language होनी चाहिए, जो आपका टॉपिक चल रहा है उसके हिसाब से. मिस्टर, टीचर को जब आप बुलाते हैं तो देन यू मस्ट कॉल देम मिस्टर अजय शर्मा. देखिए आप लोगों के साथ जितनी भी मैंने कम्युनिकेशन करी है व्हाट्सएप में, गुड मॉर्निंग मिस हिना, गुड मॉर्निंग मिस रेवती, गुड मॉर्निंग मिस अनुराधा, हमेशा मैंने यही लिखा है. आप तो मेरे बच्चे के बराबर हो सब लोग, कोई भी 35-40 से ऊपर तो है ही नहीं, तो मैं भी नाम से बोल दूं. जैसा कि कॉर्पोरेट कल्चर है, कंपनीज में आप जाएं तो एक एग्जीक्यूटिव जो है वो सीनियर मैनेजर को हाय अमित गुड मॉर्निंग, ये तरीका हमारा नहीं है. दिस इज नॉट एट ऑल इंडियन कल्चर, certainly not at all. We have to be respectful and we know what is the dignity of a person in a society. उसकी सोसाइटी में वैल्यू क्या है, कुछ हो या ना हो. I have to be respectful to others because this is one of the basic tips for etiquette. It has to be followed. At least I will follow. I am least bothered about others.
अब कभी कभी कोई बोल देते हैं मेरे को, कम्युनिकेट जब करते हैं व्हाट्सएप में, सर आई डिडंट गेट द सर्टिफिकेट, नो गुड मॉर्निंग, नो गुड आफ्टरनून, नो गुड इवनिंग। बुरा लगता है बट आई डोंट, लेकिन क्योंकि ये एटिकेट्स के ऊपर और मैनरिज्म के ऊपर है, इसलिए यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। जितने लोग हैं एटलीस्ट दो चार पांच, इतने 7 लोग हैं, एटलीस्ट दे विल ट्राई टू इम्प्रूव अमॉन्ग देमसेल्फ। एक दूसरे को भी करिए, तीसरे आदमी के सामने एड्रेस देम, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मिस्टर राकेश, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Just try to utilize these words. Similarly, social media communication, keep school talk away, student talk away, colleagues talk away, budgetary talks away, salary talks away. क्या बात करेंगे फिर आप? हीना मैडम, आप तो कानपुर से हैं और जी यहाँ सर। मैं अभी मुंबई में बैठा हूँ। मुंबई में कितनी बारिश हो रही है, मैं तो गर्मी से सता के, जब सता दिया मेरे को तो मैं यहाँ आ गया। और यहाँ पे बारिश इतनी है कि कपड़े नहीं सूख रहे। देखिए, कभी आपने मेरे को टी शर्ट में नहीं देखा होगा, प्रेस भी कर लिए, ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे एक स्टैंड रखा हुआ है, उस पे कपड़े सूख रहे हैं, बट आई एम हैप्पी। सो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के लिए यू मस्ट थैंक इवन अ पीएन ऑल्सो। कोई किसी पीएन को भैया पानी ला देंगे, वो लेके आ जाता है, थैंक यू बोलिए। आप प्रिंसिपल हैं, आपने एक कॉफी ले आके दी, आपके पीएन ने कॉफी ला के दी, मीटिंग के लिए चेयर लगा दी, थैंक यू भैया। क्या बोलने में जा रहा है एक थैंक यू बोलने में? नथिंग यू विल लूज, बट यू विल गेन द रेस्पेक्ट इन द आईज ऑफ अदर पीपल। रेस्पेक्ट मैंने बोल दिया आपको। नेक्स्ट, रिगार्डलेस ऑफ एनी डिफरेंस, मैंने अभी बोल दिया आपको। कम्युनिकेशन के लिए भी मैंने बता दिया, डिस्क्रिशन भी, एंड हाउ यू शुड कम्युनिकेट। मेंटेन एन अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप, ये सारी चीजें जो 3-4 मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, विद विच यू विल सर्टेनली फील योरसेल्फ इलेटेड। आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है। प्रिंसिपल्स जनरली अलाउ नहीं करते हैं मोबाइल्स को क्लासेस के अंदर। तब क्या करेंगे? छुट्टी के दिन तो कर सकते हैं, संडे है, कोई हॉलीडे है, एटलीस्ट जब आप कोरेस्पॉन्ड कर रहे हो किसी के साथ, तो ये कम्युनिकेशन फिनिश तक होके उसके बाद आप लॉग ऑफ करें। If the people are not vital, if their talks are not vital, they become gossips. So good, do not get sucked into this elite group, gossipers, rumor mongers. Next is, टॉपिक क्या बात करनी है मैंने अभी आपको बताया। Don't discuss about other students, confidential issues of school, अपने कोलीग के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मेरी ननद ऐसी है, माई मदर इन लॉ इज लाइक दैट, माई फादर इज इन लॉ इज लाइक दैट। नेवर टॉक, पीपल विल लिसन टू यू वेरी सैड मूड, दुखी होके सुनेंगे, लेकिन फिर वो हंस के उड़ा देंगे, और वो टॉपिक उसी तरीके से नहीं जाएगा किसी के पास जैसे आपने बोला। आई एम सॉरी बिकॉज आई एम गेटिंग माई थ्रोट ड्राइड अप। लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ाते हैं। नो बडी विल सिंपैथाइज यू, डोंट थिंक ही इज माई वेल विशर। पेरेंट्स के साथ यू आर लकी इफ यू हैव गॉट रेस्पेक्ट फ्रॉम द पेरेंट्स।
And occasionally you will get difficult parents also, sometimes. But you don't change as per the condition or the person. What you have to do is you keep your personality intact. टाइमिंग के साथ क्या है, अपने बच्चे के बारे में पेरेंट टीचर्स मीटिंग में तो किसी बच्चे के साथ, किसी बच्चे के बारे में उसके पेरेंट के साथ कुछ डिस्कस मत करिए, नेवर। कभी अकेले में बात कर दीजिए, इन पर्सन अगर करनी है तो शेड्यूल कर लीजिए कि सर अगर आप कल फोर्थ पीरियड 11 बजे है और 10:20 पे है, बिफोर लंच फोर्थ पीरियड, if you can come and spare some time to talk about your child, I'll be happy. और इसके लिए आपको बोलने के लिए, बोलने से पहले मटेरियल होना चाहिए, और वो मटेरियल मिलेगा आपको कहाँ से? वो मटेरियल मिलेगा आपको एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। इसके बारे में मैं वेबिनार कर चुका हूं पहले से। ऑन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आई हैव कंडक्टेड ट्वाइस, नियरली 8 months पहले मैंने करा था, और एक अब अभी पिछले महीने किया था। अहमदाबाद से कोई भी नहीं है। नाउ so if it is negative, don't discuss, because most of the parents they don't like to hear, and if it is not important also don't discuss. In person बुला लीजिए, पेरेंट्स विल बी मोर रिसेप्टिव जब आप अकेले में बात करेंगे उनसे। नेक्स्ट, ओपन कम्युनिटीज के साथ प्रेफर टेक्स्ट। सोशल मीडिया के देखिए, रेस्ट्रेंट्स जो मैंने एक के साथ बताया, दे आर विद ऑल, चाहे स्टूडेंट्स हो, अदर स्टाफ मेंबर्स हो, टीचर्स हो, मैनेजमेंट हो, कम्युनिटी मेंबर्स हो, फैमिली हो, ये सारी चीज आपको रखनी पड़ेंगी इनटू कंसिडरेशन। कम्युनिकेट करने में रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज, डिस्क्रिशन नंबर 2, respect, then the language, then comprehension or grammar. Grammar and comprehension, they should not be hurting. Your child is behaves wild in the class. अगर आप किसी को ऐसे पेरेंट्स को बोलेंगे तो क्या सोचेगा वो? नो, बड़ा सॉफ्टली उनको बताइए ना कि सर, आई टेल यू वन थिंग, दैट मोहित acts quite smartly when he is in the company of other friends. लेकिन ये चीज सब रिपोर्ट करने से पहले यू मस्ट फाइंड आउट कि व्हाई ही बिहेव्स लाइक दैट, व्हाट इज द ट्रिगर अप बिहाइंड दैट बिहेवियर। वो सब एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में जाता है, एंड देन यू ओपन इट अप एंड रख दीजिए उनके सामने कि सर दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, नॉट बाय मी, बाय अदर टीचर्स आल्सो। सो सोशल मीडिया में मैंने बता दिया, डोंट बी friends with the parents. School talks off. You don't know when they will save the message and show your principal, superintendent, or even a court, God forbid, but they may utilize in the court also. And you know, there is a ruling in our Indian constitution that WhatsApp can be utilized as a witness or as a evidence. जब ये आप एज ए टीचर की तरह एक रिप्ड स्वेट्स में या इनअप्रोप्रिएट टी शर्ट में जाने की सोचें तो थिंक ट्वाइस कि मैं बाजार में जा रहा हूं वेयर दे विल बी, आई विल बी ऑब्जर्व्ड, will it be appropriate for others to watch me like this? Think about it and then proceed. कम्युनिटी मेंबर्स के साथ मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन तो आपको रखना ही रखना है। रोल मॉडल, it is important to maintain a public image as a good role model for your students, for the community, with your colleagues, with your bosses.
with the management, with your family members, not close family even, ग्रोसरी स्टोर के साथ, लाइब्रेरी आप जा रहे हैं वहां पे, फेसबुक आप जा रहे हैं वहां पे, एवरीवेयर। देखिए हमारा जो है ना प्रोफेशन ऐसा है, वी हैव टू बी हम्बल, वी हैव टू बी पोलाइट, वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल ऑलवेज। अब यहाँ पे मैं इसको बंद करूंगा। These are 24 5 slides, 24 slides we have done, and 20 more slides we will do on the next date. Certificates I will post. I will stop sharing now. कहा गया? Okay, I will stop sharing now. If you have got any questions, you can open up your videos and then ask the question. अर्पिता जी हैं, अनुराधा जी हैं, both are from same place. हिना जी from UP. जसप्रीत जी आज पहुंच गई है तो प्रोबेबली। जसप्रीत जी, हैव यू रीच योर डेस्टिनेशन? कोई भी नहीं है क्या मीटिंग में? नहीं सर, सब लोग हैं। सब लोग हैं? Everyone is good. All are quiet. ये इतने शांति के साथ सुन रहे हैं, कभी कभी मैंने देखा नहीं इतने सीरियस स्टूडेंट्स और लर्नर्स। सर सर मेरी एक्चुअली एक सीरियस question है। होना सॉरी, कंपलसरी है। हाँ जी, अनुराधा जी आप कुछ बोल रहे हैं? मैंने बोला सर इतना सीरियस होना जरूरी है क्योंकि खुद को डेवलप करने के लिए जरूरी है। बहुत जरूरी है सर मेरा एक क्वेश्चन है। एक जी। एक्सपीरियंस में अक्सर सीनियर टीचर हूँ तो स्कूल में जो और टीचर्स होती हैं हम लोग के लेवल पे वो सब 50+ हैं। तो कई बार सर ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट और साइंस में जो फ्रिक्शन चलता है जी हाँ। उसपे कुछ टीचर्स बहुत हाई पिच में बात करती हैं और कुछ भी पूछने पे बहुत चिल्ला के जवाब देती हैं। तो अभी तो सर इसको बहुत पेशेंटली इसको बहुत इग्नोर करके हैंडल कर रहे हैं, जी हाँ। लेकिन इसका क्या है मतलब शुड आई टॉक टू दोस पीपल और टेल देम दैट दे शुड नॉट टॉक लाइक दिस, जैसे ऊंची आवाज में बात नहीं करना, अरे देखिए, ये मैंने क्या है। बताया ना आपको, जी सरमनाइज करने से कुछ नहीं होगा, ना बच्चों के ऊपर, ना पेरेंट्स के ऊपर, ना आपके कुलीग्स के ऊपर। ट्राई टू अवॉइड सच पीपल। देन अगर वो भी आपसे बात करने की कोशिश करें तो ट्राई टू इग्नोर कुछ समय के लिए। आई एम नॉट टेलिंग फॉर एवर, कुछ सर, समय के वर्क लिए। प्लेस में इंटरेक्शन होता है और कोई ऊंची आवाज में इंस्ट्रक्शंस दे या बात करे, बिकॉज वर्किंग में तो इट्स नॉट सिविलाइज नो, इट इज नॉट टीचर्स सिविल। टॉकिंग टू टीचर्स। नहीं, या वर्किंग में भी नहीं, वैसे भी नहीं। इट इज नेवर, इट इज या नेवर एक्सेप्टेबल। आप घर में ही देखिए ना, बच्चों से ऊंची आवाज में बात करिए, दे विल नेवर लिसन टू यू। दे विल नेवर लिसन। फिर भी देखिए, आप दूसरे के चक्कर में अपनी पर्सनालिटी क्यों इफेक्ट करते हैं? व्हाई शुड यू चेंज इट? So एक then बार what is प्यार the से solution? बोलिए। Just ignoring such people. नॉट इग्नोरिंग, पहले अवॉइड करिए। पहले तो अवॉइड करने से पहले उनको थोड़ा सा बोलिए कि मैडम, मैं तो आपसे एक बड़ी हम्बली एक चीज पूछ रही हूँ। इफ यू कैन हेल्प मी आउट, थैंक यू वेरी मच। इफ यू कांट हेल्प आउट, देर आर अदर पीपल ऑल्सो। ओके के जा, हाँ जाओ हाँ पूछो, जहाँ बिल्कुल, जहाँ बस बस पूछो। बस बिल्कुल यही यही टोन। बट लेकिन आपकी पर्सनैलिटी पे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जी जी जी। और ना ऐसे आदमी के बारे में कहीं कोई गॉसिप करिए कि मैंने एक्स मैडम से पूछा था और उन्होंने ऐसे पलट के जवाब दे दिया। क्यों निवेदिता मैम? थैंक यू सर। माय प्लेजर, प्लीज Good बताइए evening, कि। sir. हाँ बोलिए अर्पिता जी, Good evening, sir. बोलिए। गुड Sir, I इवनिंग। think active listening is also important in teaching personality. टीचिंग पर्सनालिटी में अगर आपको लिसनिंग की टेक्निक नहीं आती है
certainly जो दूसरा बात बोल रहा होगा आप उसके बीच में इंटरफेयर कर देंगे. Even Yes, sir. students also. Yes, sir. So ये according to चीज- me, active listening is also important characteristics तो which we इसलिए need to develop. यस certainly. और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि यू कीप अ स्मॉल पॉकेट डायरी, बहुत छोटी सी एक स्मॉल डायरी अपने पर्स में रख लीजिए. whenever you Okay. want to intend to talk to you somebody or a student talking to you, आप उस स्टूडेंट का नाम लिखिए डायरी में और जो पॉइंट्स वो बोलते हैं शॉर्ट में 2-4 वर्ड्स उसके लिख लीजिए. And after that you just humbly ask, are you finished? Okay, now let me answer. जैसे मैंने आपकी बोलने के बीच में इंटरफेयर नहीं किया था, you will also not interfere, you will also not stop me. बाद में हम, Yes. and if the person still talks, you can quietly and peacefully, this is something we have to give more time. We have to give more time. So we will discuss it whenever you are free. I am free in 6th period. Come to library. We will talk about this. आप देखेंगे कि वो बच्चा कभी आपके पास नहीं आएगा. बट अगर आपने वहीं जवाब देना शुरू कर दिया तो उसके Yes, साथ साथ उसका जो गैंग है वो भी अंदर वो कन्वर्सेशन में कूद पड़ेगा. बिकॉज दे ऑलवेज ट्राई टू belittle the teachers. हमेशा. मेरे साथ भी हुआ. yes, एक sir. बार मैंने एक एनसीईआरटी की बुक थी जिसमें कि ज्यादातर मिस्टेक्स अभी भी होती हैं, तो उसमें एक प्रोसेस की स्पेलिंग मिस्टेक थी. मैंने जो बोर्ड पे लिखा तो एक लड़का फट से बोल दिया, सर बुक में तो ये लिखा है. मैंने कहा बुक में गलत लिखा है. बोल के यार मैं आई वेंट ऑफ. नेक्स्ट डे होल क्लास कलेक्टेड देयर एनसीईआरटी बुक्स एंड केप्ट ऑन द टीचर्स टेबल. मैंने कहा व्हाट इज दिस, कि सर आपने लिखा, बोला किताब में गलत लिखा है. तो मैंने कहा बेटा गलत लिखा है तो जो मैंने लिखा था उसको डिक्शनरी में सर्च करके और किताब में ठीक करो, किताब में उठाओ अपनी अपनी. इट इज नॉट अ वे दैट यू बिहेव विद अ टीचर कि आपने सारी किताबें टीचर्स टेबल पे रख दी, पढ़ोगे कहाँ से घर जाके. मैं आज ही होमवर्क देता हूँ आपको ऐसा कि आपको बिना किताब के होगा ही नहीं. कैसे करें सर. मैंने कहा ट्राई टू फाइंड इट आउट फ्रॉम द डिक्शनरी कि इसकी राइट स्पेलिंग का है, एंड देन रेक्टिफाई द मिस्टेक. So Arpita ji, this is the right approach. Thank you, sir. My pleasure. चलिए और किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं. इट इज नियरली 50 minutes. चलिए ठीक है निवेदिता मैम, फिर आज बंद करते हैं इसको मीटिंग को. हीना जी थैंक यू. Yes, fine. अब नेक्स्ट कब होगा इसका सेकंड पार्ट, आई विल लेट यू नो. Okay, fine. Thank you ladies. Have a nice dinner and a nice sleep. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so Thank much. you, Take thank care. you. Good night. Take care you also. Thank you, sir. Yeah.